ہم آج جس موضوع کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ موضوع ایک بہت ہی مختلف ڈفرینٹ موضوع ہے. عام طور پر دروس و بیانات میں یہ موضوع کور نہیں ہوتا ہے، اور کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اس موضوع کے متعلق جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے. تو آئیے آج ہم اس موضوع کو کور کرتے ہیں جو آرگنائزرز نے مجھے دیا ہے آج، ذمہ داروں نے، اور موضوع ہے سونے اور چاندی کی تجارت کے رولز، سونے اور چاندی کی تجارت کے قواعد، قانون. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس درس کو صرف ایک درس کی طرح نہیں رکھیں گے، تھوڑا ڈسکس کر کے کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ بات آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی، اور جو لوگ اس ویڈیو کو بعد میں بھی دیکھیں گے ان کو بھی یہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی اگر آپ حضرات میرے سوالوں کا انشاءاللہ جواب دیں گے. دیکھیے، چیزیں تو بہت بکتی ہے دنیا میں، تو کیا چیزوں میں سے سونا اور چاندی ایک اور بس چیز ہے یا اس کے اندر کچھ الگ چیز ہے؟ مطلب سونے اور چاندی کے اندر کیا ایسا نہیں لگتا کہ باقی چیزوں کے بنسبت سونے اور چاندی کے اندر کچھ خاصیت ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا خاصیت ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ سونے اور چاندی میں خاصیت ہے کچھ؟ باقی چیز، اب دیکھو موبائل دکھ رہا ہے، مان لو کہ کوئی کتاب بیچ رہا ہے، مان لو کہ کوئی پانی کا گلاس بیچ رہا ہے، ہاں تو بکتی تو بہت سی چیزیں ہیں. سونا چاندی بھی بک رہا ہے، کیا وہ بھی باقی چیزوں کی طرح ہے یا اس میں باقی چیزوں کے کمپیریزن میں کچھ فرق ہے سونے اور چاندی میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے بہت ساری آگے کی باتوں کا کی بنیاد اسی سوال کے جواب میں ہے. جی، قیمتی ہے، اوکے. تو ڈائمنڈ تو اس سے بھی قیمتی ہو سکتے ہیں، ہے نا، اور اس سے بھی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں. ریئل اسٹیٹ، زمین کا بھاؤ دیکھ لو، سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے. لیکن سونے اور چاندی کے کچھ خاص رولز ہیں جو اس سے قیمتی چیزیں بھی ہے، لیکن اس کے کمپیریزن میں اس کے کچھ خاص قاعدے ہیں. کیوں؟ ایک وجہ ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کون جواب دے سکتا ہے. اگر غلط جواب بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، ٹرائی تو کرو کم سے کم. ہاں جی، ہاں زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کپڑے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، وہ زینت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سونے چاندی خاص کیوں؟ ایک وجہ ہے. کون اس نفس پہ اپنی انگلی رکھ سکتا ہے کہ کیا چیز ہے وہ؟ زکات نکالنا ہوتا ہے. کہیں آپ قریب پہنچے ماشاءاللہ. آپ نے وہی ہم لوگوں کو زیورات یعنی کہ کپڑوں پہ تو زکات نہیں نکالنا ہوتا ہے، کس کو کپڑے استعمال کے کپڑوں پہ تو زکات نہیں نکالنا ہوتا ہے، سونے چاندی پہ زکات ہے. آپ قریب آئے ہیں لیکن پھر بھی باقی ہے نفس تک پہنچنا. کرنسی، ماشاءاللہ صحیح جواب. سونا چاندی پہلے کے زمانے میں کرنسی ہوتی تھی. سونے کا دینار ہوتا تھا، چاندی کی درہم ہوتے تھے. اور نوٹس جب شروع ہوئی تو نوٹ شروع ہونے سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا سسٹم کہ نوٹ کیا ہوتی تھی؟ ایک رسید ہوتی تھی کہ آپ کو اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، آپ سونا لے کر جاؤں گے، اس سے اچھا آپ یہاں پہ آؤ، ایک دکاندار ہے وہ آپ کے سونے کو لے لے گا، سکوں کو لے لے گا، آپ کو ایک رسید دے دے گا. آپ وہاں پر اس دوسرے شہر میں جا کر وہاں وہ رسید دے دینا، اپنے سکے لے لینا. ٹھیک ہے. پھر یہ اتنا زیادہ چلنے لگا کہ لوگ رسید سے ہی کام کرنے لگے. رسید کے پیچھے کیا تھا؟ سونا تھا. اور وہ دکان کا نام کیا ہے؟ بینک. ہاں، وہ دکان جو تھی نا وہ بینک تھی جہاں سونا جمع تھا. پھر جب بہت سارے لوگ رسید سے رسید میں کام کرنے لگے کہ میری رسید تم لے لو، یہ دے دو چیز، یہ تمہاری رسید مجھے دے دو، رسید سے رسید میں کام ہونے لگا، تو بینک نے پیچھے سے کیا کیا؟ جتنا سونا تھا اس سے زیادہ رسید دے دی مارکیٹ میں. پھر کیا ہوتا؟ ہر کچھ ٹائم سے سب لوگ رسید لے کر اپنے اپنی آ جاتے اور آ کر کے کہتے کہ اوکے ہمارا سونا دو. تو بینک کے پاس اتنا سونا تو ہوتا نہیں تھا، اسے کہتے تھے رن آن دا بینک، اور ایسے کر کے وہ بینک وہاں پہ ڈوب جاتی تھی. تو پھر بینک نے مل کر کیا کیا کہ سب بینک نے مل کر ایک سینٹرل بینک بنائے تاکہ کچھ پرابلم ہو تو سینٹرل بینک ان کو بچائے گی. اب سینٹرل بینک میں سونا ہے اور پھر اس کی رسید ایشو ہوتی ہے. پھر کیا ہوا کہ جتنا سونا ہے اس سے زیادہ رسید ایشو ہو رہی تھی. ہوتے 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 ایک ٹائم آیا کہ پیچھے سے سونا ہٹا دیا گیا، صرف رسید ہی رسید کا کام رہ گیا. تو ابھی جو کرنسی اس کو فیاٹ کرنسی بولتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کا سونے اور چاندی سے تعلق ہونے کی وجہ سے سونے اور چاندی کا پہلے جو حکم ہوتا تھا اسی حکم کے اندر آج کرنسی ہے. کیونکہ بھلے ہی کرنسی کاغذ اس زمانے میں کاغذ، ارے پھر کاغذ پہ زکات ہے کیا؟ کاغذ پہ کوئی زکات ہے؟ نہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کاغذ جب کرنسی ہے اور وہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہے تو اس کے اندر بھی سونے اور چاندی کے لین دین کے معاملات جو تھے وہی سیم معاملات کاغذ پہ بھی ہے، جیسے جو کرنسی ہے، جو کاغذ کرنسی ہے کرنسی پہ بھی ہے. تو آئیے ایک چیز تو آپ نے سمجھے کہ یہ پہلے کے زمانے میں لین دین کے لیے
सिक्के ये क्या होते थे उस जमाने के, करेंसी क्या होती थी, सोना और चांदी। नोट्स तो नहीं होती थी वो जमाने में ओरिजिनल करेंसी थी, सोना और चांदी की करेंसी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। एक बात तो आपने बिल्कुल परफेक्ट कैच कर ली। अब याद रखो, सूद का जो मामला होता है ना, सूद का मामला आमतौर पर जो होता है वो करेंसी में होता है। करेंसी यानी कि चाहे वो सोने चांदी की करेंसी दीनार और दिरहम हो, सूद का मामला जो लेन देन होता है वो कैसे, पैसे से पैसे में होता है ना। अब ये जो मामला ऐसा है ना, एक इतना खतरनाक मामला है कि याद रखो, सूद जो होता है ना, भेद बदल करके आता है, नाम बदल करके आता है। कितने सारे लोग सूद का काम कर रहे होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि वो सूद का काम कर रहे हैं, क्योंकि सूद जो है जरूरी नहीं है मैं अपने ऊपर बोर्ड लगा के आए मैं सूद हूं, इंटरेस्ट हूं, रिबा हूं, वो नाम बदल करके भी आता है। और आप अगर इस मौजू को स्टडी करेंगे ना, तो आप देखोगे कि इस टॉपिक के अंदर कैसे कैसे हीले, बहाने, एक्सक्यूजेस, व्हाइट वॉशिंग, कवर अप चढ़ाना, सूद को कैसे पैकेज करके देते हैं, आपको ताज्जुब होगा। यानी कि ये टॉपिक अगर आप डीप जाके स्टडी करोगे, सूद का मामला, सूद का टॉपिक, तो आपको बात ये समझ में आएगी कि कितने ज्यादा गेम्स होती है टॉपिक के अंदर। हाँ, और तो और अभी हमारे यहाँ ये फितना अभी आया नहीं है, बहुत सैड बात है, लेकिन आना चाहिए। क्या मतलब कि भाई हमारे पास इस्लामिक बैंक्स नहीं है, होना चाहिए। लेकिन गल्फ के अंदर जहां इस्लामिक बैंक है, तो बाज ऐसी भी इस्लामिक बैंक है जो कहने के लिए इस्लामिक है, जो सूद को रिपैकेज करके दे रही है, सूद को रिपैकेज करके दे रही है। ऐसी भी सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी इस्लामिक बैंक भी है, लेकिन ऐसी भी है वहां पर। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो डायरेक्ट सूदी बैंक ही है, लेकिन वहां पर जहां है वहां पर ये फितना भी है। अब आज का जो टॉपिक के अंदर मैं मौजू शुरू करने से पहले ये तारुफ में बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बात चीजें जब आप पढ़ेंगे तब आपको आपके जहन में शायद ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो याद रखिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन, हर उम्मत का एक फितना होता है, व इन्ना फितनत उम्मती अल माल, मेरी उम्मत का फितना माल है। मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल। ये पैसा जो है ना, ये इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ी आजमाइश है। अब मेरे भाइयों याद रखें कि पैसे के मामले में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, और सूद का मामला आपको पता है ना मेरे भाइयों कितना खतरनाक मामला है। सूद वो गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से है पहले तो, और सूद वो गुनाह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सलासतु व सबूना बाबन, सूद के 73 दरवाजे हैं, 73 दरवाजे हैं। ऐसरुहा, सबसे कम दर्जे का दरवाजा ऐसा है, मिस्लुअन की हर रजुल उम्महु, जैसे कोई शख्स अपनी मां के साथ बदकारी करे, सबसे कम दर्जा सूद का 73 में से। और ये हदीस सही अल जामे में, हदीस सही सनद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के मामले में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सूद का मामला इस तरह से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है। ये भी सही हदीस है, सही जामे में हदीस मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा गुनाह है, क्यों? उसकी हिकमतें हैं मेरे भाइयों। याद रखो क्या होता है, इंसानों का मामला इस तरह से है कि इंसान बहाव के साथ बहते हैं, सब चाल चलन जो चल रहा है उसके साथ वो भी चलने लगते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो असलियत को पहचान पाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मालिक, खालिक, क्रिएटर अल्लाह ताला, वो तो जानता है ना क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो जानता है सूद कितना बुरा है, सूद कितना बुरा है अल्लाह ताला जानता है। मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ, एक मिसाल के जरिए समझिए। मैं मौजू अभी तक शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन ये तारुफ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मौजू को अच्छी तरह से इंशाल्लाह समझ पाओ जब कायदे आपके सामने आएंगे। देखिए, सूद का मामला ऐसा है कि जैसे मान लो कि अब ये जो गली है, वो रोड पे थोड़े ज्यादा लोग दिख रहे थे, गली में थोड़े कम दिख रहे हैं। सोचो कोई शख्स अगर किसी के गर्दन पे छुरी रख के कहे जेब में क्या निकालो, सही होगा गलत होगा? गलत होगा ना। सूद है ना वो छुरी है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीब है ना वो गरीब के गरीब ही रहेंगे और बदतर गरीब रहेंगे। सूद वो छुरी है। क्या मामला है कि आपको पता है दुनिया के अंदर, दुनिया के वेल्थ में से, दुनिया के माल में से, वेल्थ में से, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि टॉप 1% के हाथ में
کتنا ہے اور ٹاپ 10% کے ہاتھ میں کتنا ہے. وہ بتاتے ہیں ٹاپ 10% کے ہاتھ میں دنیا کا 84% ایسٹ ہے. دنیا کے 84% ایسٹ 10% کے ہاتھ میں, 1% کے ہاتھ میں 44% ہے. اور آدھی دنیا, جو نیچے کی آدھی دنیا, یعنی کہ 50% دنیا, یعنی کہ 800 کروڑ لوگوں میں سے 400 کروڑ لوگ, ان کے پاس دنیا کی کتنی پراپرٹی ہے معلوم ہے؟ 1% بھی نہیں, راؤنڈ فگر کے لیے 1% لا رہے ہیں. یعنی کہ 400 کروڑ لوگ مل کر دنیا کی 1% پراپرٹی کے اونر ہے, اور 10% لوگ مل کر 84% کے اونر ہے, اور درمیان میں ہے مڈل کلاس جو 15% کے اونر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چند لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ ہے, وہ اپنا پیسہ لگائیں گے تو سود پہ لگائیں گے, جس میں رسک کس کا ہوتا ہے؟ کوئی بزنس کر رہا ہے تو صرف بزنس کرنے والے کا ہوتا ہے. اسلام نے کیا کہا کہ نہیں, تم سود پہ نہیں لگا سکتے, حرام. اب کیا ہوگا؟ اب جب ان کے ہاتھ میں سے یہ چھری لے لی گئی, اب پیسہ تو ہے, پیسہ تو کوئی ایسے ہی نہیں رہنے دیتا, اب وہ انویسٹ کریں گے پیسہ. کس بیسس پہ؟ پروفٹ شیئرنگ بیسس پہ, رسک شیئرنگ بیسس پر. اگر سود لے لیا گیا, سود کی چھری لے لی گئی ان کے ہاتھ میں سے, تو اب وہ رسک شیئرنگ بیسس پہ کریں گے. کیونکہ آدھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, آئیڈیاز ہے, پلانز ہے, لیکن پیسہ نہیں ہے. پیسہ ہے تو امیروں کے ہاتھ میں, تو ان کو کہا گیا کہ تم سود پہ نہیں لگا سکتے. اب کیا ہوگا؟ وہ انویسٹ کریں گے, انویسٹ کریں گے تو زیادہ بزنس کھلیں گے, کیونکہ اب کیا ہوگا؟ رسک شیئرنگ ہوگا کہ کام کرنے والا اور انویسٹ کرنے والا دونوں کے اوپر رسک ہے. ہاں, دونوں کے اوپر رسک ہے. زیادہ بزنس کھلیں گے, زیادہ بزنس کھلیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ روزگار پیدا ہوگا, کنٹری کا ڈیولپمنٹ ریٹ بڑھ جائے گا. تو یہ بہت سارے فائدے, ایک بہت الگ موضوع ہے. چلیے آئیے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں. اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے سونے اور چاندی کے لین دین کے قاعدے. تو سب سے پہلی بات تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ سونا اور چاندی جو ہے پہلے کے زمانے سے کرنسی ہوا کرتی تھی, اور اسی چیز میں سود کا جو نافور ہے, یہ کرنسی, یہ پیسے کے اندر ہی معاملہ آتا ہے. تو ایسی چیز جیسے ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مان لو کہ جیسے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوشن ہے, آئی سی یو میں جاتے ہیں ڈاکٹر, کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سیفٹی گیئر پہنتے ہیں کہ بھائی انفیکشن کا چانس ہوتا ہے, تو وہاں زیادہ سنبھالتے ہیں. تو یہ ڈینجرس ایریا ہے پیسہ, اس میں رول زیادہ سخت ہے, اس میں رول زیادہ سخت ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ہم پہلی حدیث. اس موضوع پہ پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جو آپ کو ملے گی, بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہوا کیا تھا سن لیجیے. جہاں بلال الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی, بلال رضی اللہ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھی کوالٹی کے کھجور لے کر. یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الوکالہ میں, اچھی کوالٹی کے کھجور لے کر آئے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این ھذا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ فقال بلال کان عندنا تمر ردی, ہمارے پاس ردی کھجور تھے, یعنی کم درجے کے کھجور تھے. فبیت منہ ساعتین بساع, تو میں نے دو سا اس زمانے کا ناپ تھا سا, میں نے 2 سا ہلکی کوالٹی کے کھجور لے کر 1 سا بھاری کوالٹی کا کھجور خرید لیا. 2 سا کم درجے کے کھجور دیا, اس کے بدلے میں 1 سا بھاری کوالٹی کے کھجور ادلا بدلی کر کے لیا. لنٹ ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ میں آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھی کوالٹی کے کھجور میں آپ کو دوں کھانے کے لیے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا؟ اوہ آگاہ ہو جاؤ, این ربا, یہ تو سود ہے, ہاں, لا تفعل, ایسا مت کرو. ولکن اذا اردت ان تشتری فبیع التمر ببیع آخر, لیکن جب تم چاہو کہ تمہیں بیچنا ہو تو جو کم درجے کے کھجور ہے اسے بیچ دو ایک تجارت میں. تم اشتری, پھر وہ دوسرے کھجور خرید لو. اب یہ کیا معاملہ ہے سنو, یہ سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسری حدیث میں جا رہے ہیں. حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب البیوع میں. یہ حدیث میں آتا ہے, عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب, سونے کے بدلے میں سونا. اب 6 چیزوں کا نام آنے والا ہے, سن لیجیے پہلے. سونے کے بدلے میں سونا, والفضة بالفضة, چاندی کے بدلے میں چاندی, والبر بالبر, گیہوں کے بدلے میں گیہوں, والشعیر بالشعیر, جو کے بدلے میں جو, والملح بالملح, نمک کے بدلے میں نمک, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے شعیر بالشعیر, تمر والتمر بالتمر, کھجور کے بدلے میں کھجور. 6 چیزیں ذکر کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا بمثل, جیسے کے بدلے میں ویسا, سواء بسواء, برابر کے بدلے میں برابر.
यदन भी यदीन, हाथों के बदले हाथों हाथ, हाँ हाथों हाथ, यदन भी यदीन। और फिर फरमाया जब इन चीजों में चेंज हो, इंटरचेंज हो, तो जैसा चाहो तिजारत करो, लेकिन हाथों हाथ करना। अब बात समझो, देखो ये जो 6 चीजें जिक्र है ना, क्या 6 चीजें? सोना, चांदी, गेहूं, जौ, नमक, खजूर। ये जो 6 चीजें जिक्र है, ये उस जमाने के अंदर क्या होता था? करेंसी थी। अब देखो, आप अगर मान लो कोई उस जमाने में रहते हो, अब दीनार है सोने का, दिरहम है चांदी का, लेकिन आपको कोई सस्ती छोटी सी चीज खरीदनी है, सपोज करो आपको थोड़े कुछ पाव खरीदना है, तो क्या सोना चांदी देंगे, दीनार दिरहम देंगे? नहीं। तो चिल्लर करेंसी होती है ना, चिल्लर करेंसी क्या है उस जमाने की? तो उस जमाने में करेंसी का दर्जा ये 4 चीजें भी रखती थी। क्या 4 चीजें? कि खजूर देकर खरीद रहे हैं, हाँ नमक देकर खरीद रहे हैं, और गेहूं देकर खरीद रहे हैं, जौ देकर खरीद रहे हैं। सोना और चांदी भी था, ये 4 चीजें भी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 अशियाए रिज़विया, 6 चीजें जिसके अंदर सूद का मामला होता है, ये जिक्र करके कुछ कायदे बताए इस हदीस में, बुखारी की हदीस है। क्या कायदे बताए? कहा कि ये 6 चीजें जब डील करो तो क्या करना? नंबर 1, बराबर के बदले में बराबर, जैसे के बदले में वैसा, और हाथों हाथ देना। क्या मतलब है? यानी इसके अंदर एहतियात ज्यादा है, आम खरीदो फरोख्त में अलग है, इसके अंदर एहतियात ज्यादा है। अब बात समझिए, देखिए एक शायद किसी के जहन में ख्याल आया होगा, जब बिलाल रज़ियल्लाहु वाली हदीस सुने, बार्टर होता था ना, बार्टर, कि भाई एक काम करो, आपका मोबाइल है और मेरे पास ये टेबल है, ऐसा करो मेरा एक टेबल ले लो, आपका मोबाइल मुझे दे दो। तो क्या चलेगा? उस जमाने में ऐसी चीजें होती थी, तिजारत कर सकते हैं, कोई मना नहीं, ये मना नहीं। मना क्या है कि ये 6 चीजों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये चीजों का कर रहे हो तो बराबर के बदले में बराबर। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 ग्राम सोना है, मेरे पास 10 ग्राम सोना है, आपके पास 24 कैरेट सोना है, मेरे पास 24 कैरेट सोना है, 10 ग्राम बराबर बराबर है, हाँ इक्वल इक्वल है, तो हम लोग अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्यों करेंगे अदला बदली? अब जब सेम सेम ही है तो अदला बदली क्यों करेंगे? मतलब क्या है, बात समझिए। देखिए ये यहां से शुरुआत होती है सूद की। 2 टाइप से सूद होते हैं। एक होता है कि मिसाल के तौर पर 10 ग्राम है एक आदमी के पास, वो कहता है मेरा 10 ग्राम लो, जब दोगे ना 11 देना, जब दोगे 11 देना। अब ये एक जो बढ़ा के देना, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया सूद। तो यहां पे कायदा क्या है कि अदला बदली करना है तो बराबर का बराबर ही कर सकते हो। और यदन भी यदीन, हाथों हाथ, हाथों हाथ, इसके अंदर ताखीर जो है, 2 वजह ताखीर जो होती है, ये भी मना अलाउड नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा रिबा फिन नसिया, ताखीर में सूद होता है, यानी लेट भी नहीं होना चाहिए। तो अभी आगे सोना और चांदी का रूल देखते हैं। सोना और चांदी का सबसे पहला रूल लेन देन के अंदर, और वो ये है कि जब खरीदो फरोख्त करते हैं तो हाथों हाथ होना चाहिए, क्योंकि हदीस के अल्फाज जो कई हदीस हैं वो है यदन बि यदिन, हाथों हाथ। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स जाए सोने की दुकान में, बेचने की दुकान में जाए और जाकर के कहे कि मैं सोना ले रहा हूं, पैसे आपको थोड़े दिनों बाद मिलेंगे, 1 महीने बाद, इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे। तो क्या ये यदन बि यदिन हुआ? हाथों हाथ हुआ? नहीं हुआ। तो सोने और चांदी के तिजारत का सबसे पहला रूल है, इसमें ताखीर नहीं हो सकती, इसमें लेट नहीं हो सकता, क्रेडिट पे खरीदना अलाउड नहीं है, इंस्टॉलमेंट में खरीदना अलाउड नहीं है, लेट पेमेंट के साथ खरीदना अलाउड नहीं है, कर्जे पे खरीदना अलाउड नहीं है। सोने और चांदी की तिजारत में पहला रूल है यदन बि यदिन, हाथों हाथ होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर उलमा इकराम ने यहां तक कहा है कि कोई शख्स अगर चेक से खरीद रहा है और चेक डालेगा, सामने वाला क्लियर होगा, 2 दिन बाद उसको पेमेंट मिलेगा, बोले वो भी अलाउड नहीं है। यानी हम देखते हैं जो फतावे स्कॉलर्स के अवेलेबल है, उसमें वो लोग पहले बोलते थे कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, हाँ, या बैंकर्स चेक जिसे कहते हैं, तो वो दो। अब आजकल की माशाल्लाह आसानी है कि आजकल क्या है, ऑनलाइन वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकता है आदमी, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, यहां से खड़े खड़े ट्रांसफर होकर वहां पे मैसेज आ जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। तो यदन बि यदिन का रूल हो जाता है पूरा। लेकिन पहले क्या होता था कि चेक की मुश्किलें जब होती थी तो उस जमाने में बोलते हैं कि भाई नॉर्मल चेक नहीं दे सकते हैं, बैंकर्स चेक दो, यानी कि जो ड्राफ्ट होता है वो दो, क्योंकि वो पूरी कैश का मकाम है, वो कैश जैसा ही है, यदन बि यदिन हुआ। या तो कैश से कैश खरीदो, या तो अगर देना है तुम्हें तो ये दे सकते हो। क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड रखने की इजाजत नहीं है, एक अलग मसला है, क्रेडिट कार्ड लेने की इजाजत नहीं है, सवाल जवाब में आप पूछ सकते हो।
क्रेडिट कार्ड पे भी खरीदने की इजाजत नहीं है सोना चांदी, यानी पहले तो क्रेडिट कार्ड होना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी के पास हो भी और क्रेडिट पे हो तो उसको तो बाद में पेमेंट देना है, यानी कि यदन भी यदन का रूल नहीं हुआ। तो यदन भी यदन ये पहली बात है सोने और चांदी की तिजारत में। दूसरी चीज क्या है, सवान भी सवाइन और मसलिम भी मसलिन के बराबर के बदले में बराबर, सेम के बदले में सेम। मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे औरतों में ये चीज होती है कि पुराने मॉडल का सोना ज्वेलरी लेके जाती हैं दुकान में और जा करके दुकानदार से कहती हैं कि ये है, मुझे नया मॉडल दो, ये पुराना मॉडल आप ले लो और नए मॉडल मुझे दे दो और डिफरेंस ले लो मुझसे। डिफरेंस क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे ये पुरानी ज्वेलरी है मान लो 20 ग्राम की है और ये नई डिजाइन है 25 ग्राम है, तो 5 ग्राम का डिफरेंस पैसे दे देंगे। तो ये चीज जो है क्या ये जायज है, क्या ये सवाम भी सवाइन बराबर के बदले में बराबर, क्या ये वो हुआ? ये नहीं हुआ, बराबर बराबर हुआ नहीं हुआ। तो आप देखो कि बिलाल रज़ियल्लाहु वाली वो हदीस जो मैंने आपको बताया, उससे गौर करके आप में से कौन बता सकता है कि किसी बहन को अगर पुराने मॉडल का बेचना है नए मॉडल का खरीदना है, बिलाल रज़ियल्लाहु वाली हदीस आपने सुना है, अब उसको सोने पर अप्लाई करिए, क्योंकि उन्होंने जो किया था खजूर पे किया था। हल्की क्वालिटी के 2 सा खजूर दिए थे, भारी क्वालिटी के लिए अदला बदली करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अब वही सेम रूल अगर यहां अप्लाई करें तो क्या करना चाहिए? जो बहनों का कॉमन प्रॉब्लम है ये, तो क्या करना चाहिए? आप में से कौन बता सकता है? उस हदीस को यहां पे अप्लाई करना है आपको। पहले वाला बेच दो, यानी 20 वाला बेच दो, फिर क्या करें? फिर अलग से नया वाला खरीदें, 2 अलग तिजारत करें, 2 अलग डील करें। पहले वाला क्या करें? बेचें, दूसरा वाला क्या करें? खरीदें। एक ही डील में काम ना करें। अब बेचने के अंदर क्या होता है, देखो कहां बेस्ट रेट मिलता है, आजाद हो, जहां कहीं बेस्ट रेट मिलता है वहां बेचो और जहां कहीं बेस्ट रेट मिलता है वहां से खरीदो। अगर सेम जगह पे बेचना है और सेम जगह से खरीदना है तो ये इम्कान है कि उसको एक, भले ही दिखाने में 2 अलग होंगे लेकिन वो होगा एक ही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बेच दो पहले, मतलब दुकानदार बोलेगा अरे क्या खरीदना है वो बताओ, बोले नहीं वो बाद में, मुझे अभी बेचना है। बेच दिए, पैसे हाथ में आ गए, अब एक अलग से तिजारत कर सकते हैं जिसके अंदर खरीदे। बाज़ उलमा तो ये भी कहते हैं कि उसी मजलिस में ना खरीदे, बाहर निकल के कुछ और करके आए या एक अलग अलग ट्रांजैक्शन करें। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर ये मामला है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल-बय्यानी बिल-खियार मा लम यतफर्रका, बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है जब तक दोनों अलग ना हो जाए। मतलब जब तक दोनों अलग नहीं हो जाए तब तक उनके पास इख्तियार होता है। क्या चीज का इख्तियार? कि बेचने वाला कहे कि मुझे नहीं बेचना है या खरीदने वाला कहे कि मुझे नहीं खरीदना है। कब तक इख्तियार होता है? मा लम यतफर्रका, जब तक दोनों अलग ना हो जाए। तो बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि उसी सेम मजलिस के अंदर ना करें, क्योंकि उसके अंदर अभी तक इख्तियार बाकी है, इख्तियार बाकी है कि कैंसिल हो सकता है, और बेहतर है कि कोई और दिन आओ या 1 घंटे बाद आओ या थोड़ी देर बाद आओ। ये बाज़ उलमा कहते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं हो गई तिजारत तो ये बेच दिए, अब अलग से खरीद लो। तो लेकिन अलग अलग करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि उसे बेच दो फिर उसको खरीदना। तो ये हो गया दूसरा कायदा। पहला कायदा क्या है कि क्रेडिट नहीं चलेगा सोने और चांदी की तिजारत में। दूसरा कायदा क्या है? क्या है कि बेचने और खरीदने में ऐसे इंटरचेंज अलाउड नहीं है, एक को बेचो दूसरे को खरीदो, इस तरह से काम होता है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज सोने और चांदी की तिजारत में, और वो ये है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तशरबू फी आनियतिज़ ज़हबी, सोने की प्लेट में, सोने के ग्लास में पानी मत पियो। हाँ, वल फिद्दती, ना चांदी के ग्लास में पानी पियो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला ताकुलू फी सिहाफिहा, ना सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाओ। सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाने की इजाजत नहीं है, ना सोने और चांदी के बर्तन में पानी पीने की इजाजत है, सख्त मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन्नहा लहुम फिद दुनिया, ये उनके लिए है दुनिया में, वल्लकुम फिल आखिरा, तुम्हारे लिए आखिरत में। मतलब आखिरत में क्या है? जन्नत में क्या है? सोने और चांदी के बर्तन होंगे, लेकिन दुनिया में सोने और चांदी के बर्तन रखने की इजाजत नहीं है। तो कोई अगर सोने और चांदी की खरीद फरोख्त कर रहा है तो क्या उसके पास, क्या वो बेच सकता है, बर्तन खरीद सकता है? नहीं। तो सोने और चांदी के बर्तन ना बेचे ना खरीदे।
जो खरीदो फरोख्त हमारे लिए मना है। तो बाज लोग घर में क्या हो सकते हैं, शो के तौर पे रखते हैं, चांदी की प्लेट, चांदी का ग्लास शो में शोकेस में लगा के रखते हैं। डरने की बात क्या है कि चलो वो कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं खाते पीते हैं इसमें, बस शो के लिए, लेकिन हो सकता है उनके बच्चे निकाल के इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आगे 1-2 पीढ़ी बाद जाके लोग निकाल करके इस्तेमाल करेंगे कि हाँ ये चांदी का बर्तन है, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मैं इसमें पीऊं। तो वो पीना सख्त मना है, यहाँ तक कि कोई अगर उसमें पिएगा या खाएगा तो अपने अंदर जहन्नम की आग ले रहा है, तो इससे बचना है। तो ये हो गया तीसरा कायदा जो हमने सोने और चांदी के खरीदो फरोख्त के ताल्लुक से देखा। सोने चांदी के खरीदो फरोख्त के ताल्लुक से हम आगे और भी चीज देखें कि मर्दों को सोना पहनना अलाउड नहीं है, और इसी वजह से मर्दों को जो सोना पहनना अलाउड नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना और रेशम हराम करार दिया मर्दों के लिए। तो इसी वजह से मर्दों के लिए ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी नहीं बेच सकता है एक मुस्लिम दुकानदार जो सोने और चांदी का खरीदो का बेचने का काम करे, तो उसके लिए मर्दों की ज्वेलरी में सोने के अंदर काम नहीं करे। तो ये हमने चंद कायदे देखे। अब इसमें असल बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि ये वो डेंजरस एरिया है सोने और चांदी जिसके अंदर, जैसा कि हमने देखा कि सूद का मामला इसके अंदर से पैदा होता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको सिर्फ एक मिसाल बताता हूं कि सहाबा में कितना एहतियात हुआ करता था। सहाबा में समझने के लिए हम अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत देखेंगे जो सही बुखारी में किताबुल मनाकिब में है। उन्होंने कहा इन्नका बिअर्दिन रिबा बिहा फाश, तुम ऐसी जमीन पर रहते हो जहां सूद का लेन देन आम है। फइज़ा कान लका अला रजुलिन हक, अगर तुमने किसी को कर्ज दिया है, फअहदा इलैक, और वो तुम्हें हदिया दे, हिमला तिगनिन और हिमला शईरिन और हिमला कब, थोड़ा जौ दे दे, थोड़ा भूसा दे दे, या कोई छोटी चीज दे दे, मतलब जौ है, थोड़ा भूसा है जो जानवर खाते हैं, तुमने क्या दिया उसको कर्ज, बदले में वो क्या कर रहा है, तुम्हें हदिया दे रहा है। क्या हदिया दे रहा है, कोई छोटी चीज दे रहा है। तो उन्होंने कहा फला ताखुज़हु फ़इन्नहु रिबा, हरगिज मत लेना क्योंकि वो सूद है, वो सूद है। मतलब मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कर्ज दिया, अब वो कहता है आओ भाई खाने के लिए आओ। अब आमतौर पर पहले तो नहीं बुलाता था, लेकिन अभी बुला रहा है। तो क्यों बुला रहा है, अभी जो खाना दे रहा है, क्यों खाना दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कर्ज दिया है, कर्ज के बदले में खाना खिला रहा है। तो खाना क्या है, वो सूद हो गया। हाँ पहले भी खिलाते थे, अभी भी खिला रहे हैं, पुरानी बात थी, ऐसे होता था। या कोई कहे इस बार मैं खिला रहा हूं, इस बार तुम खिला दोगे, बराबर बराबर हो जाएगा मामला, तो अलग बात है। लेकिन ऐसे कोई इनडायरेक्ट चीज भी आती है, वो भी क्या होती है, सूद होती है। तो मेरे भाइयों ये सूद के ताल्लुक से समझना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा सूद की शक्लें बहुत सारी ऐसी है जो लोगों को पता नहीं होती है। और अगर कोई ये सोने और लेन देन का, चांदी के लेन देन का मामला समझ जाए, इसी से कनेक्टेड एक और मसला समझ जाएंगे, वो है फॉरेक्स का। कि फॉरेक्स का जो मामला है, फॉरेन एक्सचेंज, उसके अंदर भी सेम मामला है, हाथों हाथ, क्रेडिट से नहीं हो सकता फॉरेक्स का ट्रेडिंग। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग हाथों हाथ होती है, हैंड टू हैंड होती है, उसके अंदर क्रेडिट नहीं हो सकता है, उसमें बाद में पैसे दूंगा ये नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। और हम देखते हैं जैसे आजकल कमोडिटी मार्केट, लोग आजकल सोना चांदी कैसे खरीदने लगे हैं, बाज लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनलाइन ही खरीदते हैं, और ऑनलाइन में सोना भी नहीं मिलता है, चांदी भी नहीं मिलता है, हाथों हाथ में ही नहीं आता है, वो ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन बेच दी। तो ये जो हाथों हाथ का मामला ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। तो उलमा इकराम ये कहते हैं कि ये कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ये चीज होना जायज नहीं है कि इस तरह से अगर है तो हाथों हाथ जाके लो बेचो, ये अलग बात है, कर सकते हो डीलिंग, लेकिन इस तरह से ऑनलाइन के अंदर जो कमोडिटीज लोग लेते हैं बेचते हैं, तो ये चीज के अंदर सोना चांदी की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो बेसिक कायदा उसके अंदर टूट रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी शक्लें हैं सूद की जो आजकल राइज है, और जो रोकने का, देखिए क्या होता है ना, एक होता है चोर दरवाजा। चोर दरवाजा भी इस्लाम में क्या है, बंद है। मतलब बाज लोग चोर दरवाजे ढूंढते हैं कि ये चीज मना है, चलो दूसरे तरीके से लाएंगे, तो वो दूसरे तरीके से जो लाने का वो सोचेंगे ना, पहले से वो रास्ता बना है, हाँ पहले से रास्ता बना है। और ये जो कानून है, ये जो कानून रूल्स है, इससे क्या होता है, दूर से आदमी सूद से बच जाता है। देखो ये हिकमत है जो हम लोग समझ रहे हैं। अब इसकी और क्या क्या हिकमतें हैं, ऐसा क्यों, तो हम ये जानते हैं अल्लाह ताला जानता है और हम नहीं जानते। इंसानों का मामला क्या है कि कोई चीज समझ में आती है, कोई चीज हमको नहीं भी समझ में आती है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि जो सब कुछ जानता है वो हमें बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें उस पर भरोसा है, वो जानता है हम नहीं जानते हैं, वो हमारा खालिक है, मालिक है, वो दुनिया का बनाने वाला है। कोई किसी और किसकी बात मान रहे हो, कोई ऐसे वैसे की नहीं, रब्बुल आलमीन की बात है,
जब रब्बुल आलमीन की कोई बात है तो आपको समझ में आए या ना समझ में आए, अपने अंदर सोच का मिजाज यही बनाए हम कि समय ना हुआ ताना, कि हमने सुना और हमने फरमाबरदारी की, क्योंकि यही बात समझदारी है कि उसी के पास वापस जाना है, उसी को हिसाब देना है। तो उसके कानूनों के दायरे में अगर हम रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, तो हम हर एतबार से खुश रहेंगे, दुनियावी एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी। अब हम लोग इस वक्त को इस्तेमाल करते हैं सवाल और जवाब के लिए, और आपका कोई भी सवाल हो इस मौजू से मुतालिक, या कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो, कोई बात सर के ऊपर गई हो, तो आप इंशाल्लाह उस बात पूछ सकते हैं। मैं इस एतबार से कह रहा हूं क्योंकि कोई चीज ऐसी भी होती है जो आप 50 बार सुन चुके हो तो समझ में आती ही आती है, लेकिन कोई चीज होती है जो ज्यादा सुने नहीं है आपने, और कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो शर्माने की बात नहीं है, हम लोग भाई बैठे हैं, दीन सीखने के लिए बैठे हैं। तो अगर आपको इस मौजू पे सवाल हो या कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जी जी, दोहरा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छी बात। हाँ, तो 5 सोलर में देता हूँ और 5 सोलर देता हूँ शायद भी जाए, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, मैं उसको कैसा है? भाई का सवाल है कि अगर इनके पास 5 तोला सोना है, वो बता रहे हैं 5 ग्राम के 10 कॉइन अगर हों, और वो ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, वहां पे 5.5 तोला की कोई ज्वेलरी पसंद आ जाए, तो कैसे खरीदें? क्योंकि हमने क्या देखा कि सवाउन बि सवाइन, बराबर के बदले में बराबर, सेम के बदले में सेम, बराबर के बदले में बराबर, मसलुम बि मसलिन, बराबर के जैसे के बदले में वैसा। तो ये तो रूल नहीं होगा। फिर क्या करें? अभी थोड़ी देर पहले हदीस मैंने आपको जो बिलाल रज़ियल्लाहु वाली हदीस बताया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क्या करो, एक को बेच दो, फिर पैसे जो आएंगे उससे क्या करो, दूसरे को खरीद दो। तो इस केस में क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कॉइन को बेच देना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए? फिर पैसे जो आएंगे उससे, हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं एक हिस्सा हदीस का हिस्सा जो मैंने दर्स के दौरान मिस हो गया मुझसे, मैं वो पार्ट को थोड़ा फोकस के साथ समझा देता हूँ। फबीउ कैफा शीतुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन काना यदन बियदिन, अगर इन चीजों में फर्क हो, यानी सोने के बदले में चांदी खरीदना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा चाहते हो करो, यानी कि उसके अंदर अपना रेट हो सकता है कि मैं सोने के 1 सिक्के के बदले में चांदी के 25 सिक्के लूंगा, 10 सिक्के लूंगा, 20 सिक्के लूंगा, उसके अंदर अपना रेट हो सकता है। बीउ कैफा शीतुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसा चाहते हो तिजारत करो। वो इन काना यदन बियदिन, हाथों हाथ हो तो यहां पर ये जो 6 चीजें हमने देखी है, वो 6 चीजों में जो 2 है सोना चांदी, वो मेटल है, और 4 जो है खाने की चीजें हैं। तो ये 2 अलग टाइप हैं। तो सोना और चांदी, क्या हम अदला बदली करके इतना सोना इतना चांदी रेशियो सेट करके कि मैं इतना दूंगा मैं इतना लूंगा सेट करके ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। सोने के बदले में सोना है तो नहीं, बराबर बराबर होना चाहिए। चांदी के बदले में चांदी है तो बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन सोना चांदी अदला बदली है तो चलेगा, हाँ चलेगा। और अगर मान लो खजूर के बदले में खजूर है तो बराबर बराबर, हाँ, नमक के बदले में नमक है, जौ के बदले में जौ है तो बराबर बराबर। लेकिन अगर उसमें फर्क हो तो फिर जैसे सोने के बदले में आप खजूर खरीद रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जे पर क्या खरीदा? जौ खरीदा। हदीस है सही बुखारी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इश्तरा तामन मिन यहूदीन इला अजलिन व रहनहु दिरअम मिन हदीस, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रेडिट पर जौ खरीदा। अना ताम, इस हदीस में ताम आता है यानी कि कुछ खाने की चीज खरीदा, दूसरी हदीस में मिलता है जौ खरीदा, और इला अजलिन यानी कि क्रेडिट पे खरीदा एक यहूदी दुकानदार से, और सिक्योरिटी के तौर पर अपनी ढाल रखे थे। तो क्रेडिट पे था, यानी कि इसमें यदन भी यदन का रूल नहीं था। तो ये कहां पे अलाउड है कि जब पहली कैटेगरी के दोनों सोना चांदी और दूसरे कैटेगरी के 4 में अगर अदला बदली करके खरीद रहे हैं, यानी इतना जौ इतने चांदी के बदले में या इतने सोने के बदले में, जब इसके बीच में फर्क हो तो इसके अंदर क्रेडिट की इजाजत है, यानी इसके अंदर ताखीर से पेमेंट दिया जा सकता है। लेकिन अगर सेम हो तो फिर उसके अंदर क्या है, अलग बात है, जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं।
जवाब ये है कि एक को बेच देंगे पहले, उसके पैसे जो आएंगे फिर वो पैसों से अलग से ज्वेलरी खरीद सकते हैं, चाहे 5.5 तोले लेना है या 4.5 तोला लेना है। तो यहाँ पे जैसे के बदले में वैसा वाला जो मामला है, ये एक बात है डाउटफुल, यानी कि जैसे के बदले में वैसा नहीं है ना। यहाँ तो कॉइन्स है और वो एक अलग ज्वेलरी होगी, सिक्योरिटी भी अलग होगी, है ना। और मुश्किल ये होती है कि उसके अंदर मेकिंग चार्जेस वगैरह भी होंगे, तो इसकी वजह से वो सेम के बदले में सेम 5 के बदले में 5 मिलना भी बहुत एक टफ बात होती है, अनलेस वो अगर बिना मेकिंग चार्जेस से दे रहे हैं जी। तो इसी वजह से बेहतर और शक से दूर रहने वाला तरीका यही दिख रहा है कि पहले को बेच करके फ्री होकर सेकंड ले सकते हैं। जी 10 दिन के बाद बना के देते। भाई का सवाल बहुत अच्छा है और सब लोग सुनिए, अब आप लोग जवाब देंगे इंशाल्लाह। हाँ, सवाल सुनिए क्या है इनका सवाल ये है कि जब सोना खरीदने जा रहे हैं तो अब जो ऑर्डर देंगे 10 दिन बाद सामने वाला बना कर देगा, तो वो तो एडवांस मांगेगा ना। अब वो खाली हमारे कहने पर तो बना के नहीं दे देगा, वो एडवांस मांगेगा। लेकिन जो चीज हम खरीद रहे हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट इन्होंने बताया, एक है सोने का चार्ज, एक है मेकिंग चार्ज और एक है जो जीएसटी है। तो सोने का अमाउंट तो हम हाथों हाथ ही दे सकते हैं, यानी सोना लिए पैसे दिए बस। लेकिन सवाल यह है कि अब सामने वाले को एडवांस चाहिए, एडवांस कैसे देंगे बताओ? चलो मेकिंग चार्जेस दे सकते हो आप, और मांग रहा है तो जीएसटी का अमाउंट भी दे सकते हो। जीएसटी हाथों हाथ होना चाहिए, ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो क्या हाथों हाथ होना चाहिए? सोना हाथों हाथ होना चाहिए ना। जिस दिन तैयार हो जाएगा सोना, वो फोन करके आपको बुलाएगा, आप पैसे लेके जाएंगे, ये हाथ पैसे दिए, वो हाथ वो ले लिए, यदन भी यदन की हदीस से अमल करेंगे। देखो याद रखो कि कोई हदीस पे अमल करते हैं ना तो उसके अंदर सवाब मिलता है, उसके अंदर बरकत मिलती है, उसके अंदर दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलती है। कोई चीज समझ में भी आएगी, कोई चीज नहीं भी समझ में आएगी, कोई चीज दिखेगी भी, फायदा दिख जाएगा कभी कभार, और कभी कभार नहीं दिख रहा है, सभी एतबार से होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो वही के तहत उन्हें मिली, उस पर अमल करने में हमारे लिए फायदा है, चाहे दुनिया के लोग जानते हो ना जानते हो, चाहे अमल करते हो नहीं करते हो। आप खुद पढ़ो हदीस, मैं आपके सामने ये हदीसें चाहिए तो मैं इसके स्क्रीनशॉट देके आऊंगा। हाँ, इनको स्क्रीनशॉट देके आऊंगा कोई एक आदमी को, तो आपके ग्रुप में डाल सकते हैं, आपका जो भी ग्रुप होगा, ताकि आप लोग ये देखो हदीसें हैं, पढ़ो, उलमा के फतावे हैं। यहां तक कि इमाम नववी सही मुस्लिम की जो शरह है, कमेंट्री है, उसके अंदर वो लिखते हैं, वो कहते हैं चाहे सोना पुराना हो नया हो, चाहे इसके अंदर कैसा हो, ब्रोकन टूटा हुआ हो या कंप्लीट हो, वो कई चीजें गिनाने के बाद वो कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, वो कहते हैं हल्की क्वालिटी के हो, भारी क्वालिटी का हो सोना, जेवरात की शक्ल में हो, ब्लॉक की शक्ल में हो, प्योर हो, मिक्स हो। उलमा का इजमा है, इत्तेफाक है कि इसके अंदर ये कायदा रहेगा, यदन बियतिन, हाथों हाथ और बराबर के बदले में बराबर। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मसलकों में भी फर्क है, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, उलमा का इजमा है। इख्तिलाफ किन लोगों में है? अवाम में, जिनको पता नहीं है, तो इसलिए वो लोग ये बात को सुनते हैं तो बोलते हैं अरे क्या बोल रहे हैं, आज ये क्या बात सुन रहा हूं मैं, ये सब शायद आप लोगों को भी कहीं अंदर शायद लग रहा होगा, बोले ये सब बातें हमने सुना नहीं है, क्योंकि सुनी भी आम बातें नहीं होती है, लेकिन ये बातें है साबित है, इत्तेफाक वाली बातें हैं। बस क्या है मामला कि हमारे माशरे में लोग शिर्क पर थे तो तौहीद की बातें दबा के अल्हम्दुलिल्लाह जोर से हुई और जरूरी थी। इत्तिबा सुन्नत पे लोग नहीं अमल कर रहे थे, तो इत्तिबा सुन्नत के मसाइल बताए गए, बहुत जरूरी था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बातें यहाँ तक आ रही है कि हमारी जिंदगी, हमारा लेन देन, हमारी तिजारत, हमारा पैसा जेवर खरीदने जा रहे हैं, उसके अंदर भी कुरान सुन्नत के मसाइल समझ करके उससे अमल करें, तो बात वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है, पहुंची नहीं है, अभी भी बहुत बाकी है। लेकिन वहीं पर गाड़ी ना रुक जाए कि हम समझते हैं कि अकीदा तौहीद बताकर बाकी दीन कुछ और है ही नहीं। तो दीन इस्लाम में तो हमें टॉयलेट भी कैसे जाना है वो भी सिखाया गया है, हर एक चीज सिखाई गई है, तो वो तमाम तालीमात पे हमें अमल करना है इंशाल्लाह। उसमें क्या होगा, फायदा है, हमारा ही फायदा है। देखो तालीमात जब मिलती है तो किसके फायदे के लिए मिलती है? हमारे फायदे के लिए। रहनुमाई मिली है तो किसके लिए? हमारे लिए मिली है।
تو چلیے یہ باتیں امید کرتا ہوں سب کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. جی میکنگ چارج ایڈوانس میں دے سکتے ہیں, جی ایس ٹی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں, سونے کا اماؤنٹ نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. اور فائنلی وہ بنا رہا ہے نا, میکنگ کر رہا ہے نا, اس کا تو چارج کورڈ ہے, اس کی محنت تو کورڈ ہے, تو اس کو کنوینس کرنا چاہیے. باقی اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو بولنا ہوگا تمہارا تو میکنگ چارج میں دے رہا ہوں نا ایڈوانس میں, کیا پرابلم ہے تمہیں. جی جی ہاں, یہ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں بھی لیے چارج دینے کے بعد تو نقصان کس کا ہے؟ بنانے والے کا نقصان, یعنی ہمارا نقصان ہے, تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. جی ہاں بالکل. موبائل ایکسچینج کرتے ہیں, ہاں موبائل ایکسچینج جو ہے نا کر سکتے ہیں, کیونکہ موبائل سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے, نہ یہ باقی کی 4 چیزوں میں سے میں نہیں ہے. تو موبائل کیا ہے؟ ایک چیز ہے, ایک چیز ہوتی ہے سمن, ایک چیز ہوتی ہے مسمن. سمن قیمت, مسمن جس پہ قیمت لگائی گئی. تو موبائل مسمن ہے, یعنی کہ ایسی چیز جس پہ قیمت لگائی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے, اس کے اندر کر سکتے ہیں خرید و فروخت کہ بھائی تمہارا ماڈل یہ ادلا بدلی کر دیے, کیش بھی دے دیے اوپر سے, چل جائے گا, کوئی پرابلم. دیکھیے کیش بیک کی جو سسٹم ہے نا, یہ ایک الگ ٹاپک پہ جا رہا ہے. کیش بیک جو ہے اچھا, یہ آن لائن بھی 1-2 کوشچن آئے ہوئے. ہاں, کیش بیک جو ہے کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پہ کیش بیک جو ہے نا کریڈٹ کارڈ کمپنیز دیتی ہے. عام طور پر کیوں دیتی ہے؟ کہتے ہیں تمہیں کیش بیک ملے گا, تم کریڈٹ کارڈ لو. اور میں نے کریڈٹ کارڈ کا بتایا ہے کہ سود, جو کریڈٹ کارڈ کا سود ہے وہ اتنا زیادہ, اتنا بدترین قسم کا سود ہوتا ہے کہ یعنی سود میں بھی سب سے بدترین. ہاں, کتنے % ہو جاتا ہے سالانہ؟ اگر آپ ٹوٹل کیلکولیٹ کریں گے نا, میں نے اس کی ایک ویڈیو میں بتایا تھا, نمبر میرے ذہن سے نکل گیا لیکن بہت ہائی نمبر تھا. پر اینم اگر کاؤنٹ کریں گے تو 70% کے اوپر جا رہا ہے. ہاں, کریڈٹ کارڈ کا سود. اب ان کو چاہیے اٹریکٹ کریں کہ آپ آؤ کریڈٹ کارڈ سے پیسے خرچہ کرو, ابھی پیسے مت دینا, 40 دن بعد دینا, کیش بیک بھی ملے گا, یہ تم بس آؤ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرو. کیوں؟ سماج سیوک ہے وہ لوگ. کریڈٹ کارڈ کمپنی سماج سیوا کر رہی ہوتی ہے, سماج سیوک ہے بہت بڑے نہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو کیش بیک وہ چارے میں سے ہے کہ آؤ یہ لے لو کچھ تو لو. ہاں, تاکہ آدمی کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرے, اور استعمال کرنے کے چکر میں کل کے پیسے آج خرچہ کرے. 40 دن میں جتنا پیریڈ دیں گے, 50 دن بھی دیتی کوئی بینک. ہاں, 40 دن 50 دن بعد پیسے دینا, لیکن 40-50 دن میں وہ نہیں دے پاتے بہت سارے لوگ. پھر کیا ہوتا ہے؟ سود دیتے ہیں, بہت ہائی لیول کا سود دیتے ہیں, اور سود کی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. تو کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. علماء نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو آدمی سائن کر کے فارم پہ دیتا ہے نا کہ اگر میں نے 40 دن میں پیسے نہیں دیا تو میں سود دوں گا, یہ شرط ہی حرام ہے. یہ شرط ہی حرام ہے, اس کو سائن کر کے دینا حرام ہے کہ میں سود دوں گا, یہ شرط ماننا ہی حرام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل, ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے وہ باطل ہے. تو ہمیں ایسی شرط ماننا ہی نہیں چاہیے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ڈیبٹ کارڈ میں بھی اگر کہیں مل رہا ہے کیش بیک, اور ڈیبٹ کارڈ میں آپ کے خود کے پیسے جا رہے ہیں, بینک کے پیسے مائنس ہو رہے ہیں آپ کے خود کے, اگر کہیں مل رہا ہے کیش بیک تو بظاہر تو ایسے کوئی پرابلم نہیں دکھ رہا ہے. اور میرے علم میں ایسے کوئی فتویٰ میں نے اس موضوع پر منع والا پڑھا نہیں ہے, پھر بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں دکھ رہا ہے. جی ہاں, بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ دکاندار جو ہوتا ہے, جو سنار ہوتا ہے, اس کو ہماری بات کئی بار سمجھ میں نہیں آتی. بولے پرابلم کیا ہے؟ یہاں پہ 5 تولہ دیے, یہاں پہ 5.5 تولہ لیے, یہ کیلکولیٹر پہ میں مار رہا ہوں, تو اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھار. تو کیا کریں؟ تو 2 سلیوشن ہے. پہلا سلیوشن یہ ہے کہ آپ جب بیچ رہے ہو تو بیچ دو, ہاں, اور تبھی مجھے خریدنا بھی ہے یہ بولو مت, کیونکہ اس کا فائدہ مت لو وہاں پر, کیونکہ پھر وہ دونوں چیزیں ایک بن رہی ہے. الگ سے بیچو اور خریدنے کی بات الگ سے کرو.
तो अब यहाँ पे फायदा क्या है, मामला ये है कि उनको समझ में हर चीज समझाने की जरूरत नहीं है। पहला मैं बताऊं 2 तरीके। पहला तरीका क्या है कि आपको हर चीज समझाने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट तरीका है, नहीं मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है मुझे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस मौके को गनीमत समझते हुए उसको दीन की दावत दो। बोलना देखो यहाँ क्या मामला है ना कि हम लोग नहीं जानते, हमारा क्रिएटर जानता है। आपका क्या कहना है, हम सबका मालिक एक है कि नहीं है? कि हाँ एक है। तो हम ज्यादा जानते हैं कि मालिक ज्यादा जानता है? तो मालिक ज्यादा जानता है, वो तो कायनात का बनाने वाला है। हम क्या है, हम तो बंदे हैं, हम तो बने हुए हैं, वो तो बनाने वाला है। वो ज्यादा जानता है, हम ज्यादा जानते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तौहीद पे मौजूद ले आ रहा हूँ, क्योंकि अगर दावत देनी है, किसी को बात समझानी है, तो सोने चांदी के मसाइल समझाना किसी नॉन मुस्लिम को, उससे बेहतर यह है कि उसको तौहीद का टॉपिक समझाया जाए, अगर बात बतानी है तो बात यहाँ ये समझ में आती है कि अगर वो आपको पूछ रहा है तो आप उसको बताओ, तौहीद बताओ, जिंदगी का मकसद बताओ। वो समझ गया तो ये मसला भी समझ जाएगा। अगर वो इस बात को समझ गया कि क्रिएटर है, उसकी बात हम मान रहे हैं, वो जानता है और हम नहीं जानते। देखो मैं आप लोगों को मिसाल देता हूं, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है। हाँ, खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, तो हम खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। 1400 साल चले गए, मुसलमान नहीं खाते, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जाके अमेरिका में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, द जेनेसिस डाइट, उसके अंदर उन्होंने 200 बीमारियों की लिस्ट दी है, हाँ, जो खिंजीर का गोश्त खाने से होती है, और तकरीबन 38 टाइप के वर्म्स की लिस्ट दी है कि इतने सारे वर्म्स इन्फेक्शन होते हैं। हम तो बच गए ना, हम तो वो सबसे बच गए। तो यहाँ क्या है मामला, यहाँ ये है कि हमें उस चीज से बचने में हम 1400 साल से बचे हुए हैं। कैसे? क्योंकि हमारा भरोसा है हमारे क्रिएटर पे कि वो जानता है। जब उसने मना किया, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, मच्छी खाते हैं, लेकिन खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, और हम तो इतनी बीमारियों से बच ही गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह यहाँ भी मामला है। अब हो सकता है कि जैसे मैंने चंद चीजें इशारतन बताई शुरू में, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो और भी हिकमतें होगी जो हमें आज पता नहीं, हो सकता है आगे के जमाने में पता चले, हो सकता है ना भी पता चले, लेकिन हमारे लिए बेहतर है, ये बात तो पक्की है। अच्छा, ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप अगर अलग से देख सकते हैं। हाँ, आप पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते जाओ सब ऑनलाइन क्वेश्चन, तो मैं जवाब देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है कि सुबह खजूर के बदले में खजूर और सेब ले। हाँ, why would one trade? हाँ, why would one trade? जौ के बदले जौ, और वो भी सेब। तो ये काम करने, ये रिकनेक्टिंग हो रहा है, ये रिकनेक्टिंग हो रहा है। हाँ, ओके, कैंसिल। कोई और इंटरनेट दो इसमें। वाईफाई है आपके? क्या है पास है? हाँ बोलो।
कि तो उसको वर्टिकल करके स्टार्ट करके आगे कनेक्टेड हो गया ना? ओके चलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी चलिए बैक ऑनलाइन। सवाल आप जो पढ़ रहे थे, हाँ पढ़िए फिर से। हाँ ओके, खजूर के बदले में खजूर सेम वेट, कोई क्यों खरीदेगा? यस, नहीं करो, नहीं खरीदो, सेम वेट। हाँ मतलब अगर करना है तो सेम करो, जो नहीं करेगा ना आदमी मत करो, फोर्स नहीं है। अगर करना है तो सेम करना। हाँ क्यों करेगा कोई? मत करो। अगर कर रहे हैं तो बराबर के बदले में बराबर, क्यों? जहां से सूद होते हैं कि मतलब 10 ग्राम दिया 11 ग्राम लिया, तो ये तो रास्ता बंद किया गया है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे सूद के मामले को ब्लॉक किया गया है, ब्लॉक किया गया है। देखो मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, जो इनका सवाल है ना, नहीं मैं समझाया हूँ, वो जो समझा रहा हूँ वही है, हाँ वही है, इसमें कोई शक नहीं है जी। जवाब गया ऑनलाइन कि नहीं गया? ठीक, कनेक्टेड थे ना हम लोग, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने बताया, सोने के बदले में सोना, सेम फॉर सेम, वही हदीस के वर्ड्स है। अगर मान लो मिसाल के तौर पे कोई कहे मैंने 10 दिया तुम 11 देना, यहीं पे तो सूद है, वही ब्लॉक किया गया कि 10 के बदले में 10 हो, सेम के बदले में सेम हो, इक्वल के बदले में इक्वल हो, और हैंड टू हैंड हो। तो यहाँ पे वो डीलिंग है वो बताई गई है। जैसे मिसाल के तौर पे एक चीज होती है कर्ज, कि मैंने 10 दिया, अब 6 महीने बाद आप वापस दोगे कर्ज, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वो यदन भी यदि नहीं हुआ, लेकिन कर्ज के अंदर गया वो खरीदो फरोख्त के अंदर नहीं है, कर्ज के अंदर अलाउड है कि कर्ज के अंदर आज 10 देंगे, आप 1 महीने बाद 10 वापस देंगे, यदन भी यदि नहीं हो रहा है, कर्ज है। लेकिन अगर हम खरीदो फरोख्त के अंदर कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, या तो सेम करो और या तो फिर दूसरी करेंसी में जाओ। हाँ फिर से इंटरनेट प्रॉब्लम है, या तो दूसरी करेंसी में जाओ जी। हाँ कोई बात नहीं जी, कोई इशू नहीं जी, कनेक्टेड है आप बताइए। अच्छा, इसकी सीवियरिटी समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जो बाज सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक में भी होती है। कि मिसाल के तौर पर एक आदमी आता है बैंक में, वो कहता है मुझे 10 लाख का कर्ज चाहिए, कर्ज। अब बैंक अगर बोलेगी 10 लाख का कर्ज है, वापस दोगे तो 14 लाख देना, तो ये 4 लाख क्या हो गया? सूद हो गया ना। और इस्लामिक बैंक सूद तो नहीं ले सकती, तो बाज सो कॉल्ड बाज, सब नहीं, क्या करते हैं वो एक सोल्यूशन देते हैं। क्या सोल्यूशन देते हैं? और आपको पता है जो सूदी बैंक है उन्होंने भी इस्लामिक काउंटर खोल रखे हैं गल्फ में बाज जगहों पर। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग सूदी बैंक है, सूदी कारोबार करने वाले लोग हैं, लेकिन कस्टमर उनको चाहिए, उसको इस्लामिक चाहिए, तो कुछ इस्लामिक कवर अप चाहिए, समझना जरूरी है। तो क्या करते हैं, कहते हैं ओके आओ, तुम्हें 10 लाख का कर्ज चाहिए और हमको 14 लाख बाद में चाहिए। अब क्या करेंगे? वो कहते हैं देखो ये लोहा है, आयन है, हाँ ये आयन है, आप इसको खरीदो, हम आपको ये आयन हम आपको बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 14 लाख में बेच रहे हैं। ये जो लोहा है इतने केजी इतने किलो आयन आज के रेट के हिसाब से हम आपको बेच रहे हैं 14 लाख में। कितने में बेचे? अभी आयन किसका है? आपका हो गया, ठीक है। अब आप अपना ये आयन जो तुम्हारा है ना, मुझे बेचो 10 लाख कैश में, 10 लाख कैश में बेचो। तो ये आयन अब आपका था, आपने मुझे बेच दिया, ये लो 10 लाख कैश मिल गया, तो 10 लाख कैश। और पिछला आपने मुझसे खरीदे थे, कितने में खरीदे थे? 14 लाख क्रेडिट, आपको 14 देना है, आज की तारीख में 10 मिला है, और 6 महीने बाद आपको 14 देना है, 1 साल बाद आपको 14 देना है, ठीक है। तो जो था पहला मामला वही हो गया। और ये आयन बीच में क्यों आया था? ये आयन बीच में क्यों आया था? उसको हलाल बनाने के लिए आया था।
ये क्या है? अब ये मैं आपको एक मिसाल दिया, ऐसे टाइप के जो होते हैं हीले, ऑफ कोर्स शरीयत में इस चीज को भी ब्लॉक किया गया है, शरीयत में ये चीज भी ब्लॉक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईना ट्रांजैक्शन कहा है। ईना के अंदर यानी बेचने और खरीदने वाला सेम है, मतलब सेम मैंने आपको बेचा, सेम आपने मुझे बेचे, ये ट्रांजैक्शन इस्लाम में अलाउड नहीं है, इसे बैउल ईना कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम ये ऐसे करने लगोगे तब अल्लाह ताला तुम पे जिल्लत भेजेगा। हदीस सही सनद है। तो हमें क्या पता चला कि ऐसे कवर अप वाले जमाने में हम लोग रहते हैं। अब कोई बोले कि इतना ज्यादा सोना चांदी बेचना खरीदना है तो सेम टू सेम हैंड टू हैंड, क्यों? क्योंकि ये चीज के अंदर सूद आता है, और सूद है ना जब हराम है बता दिया गया इतनी सख्त पाबंदी के साथ, अब चोर रास्ते ढूंढने वाले अलग अलग ढूंढेंगे तो वो रास्ते भी पहले से क्या है? ब्लॉक है। समझ गए आप जी? काफी मुसलमानों ने पैसा इन्वेस्ट किया था और काफी उम्र लोग भी ये पाबंदी करते थे, तो उसका क्या शेयर किया था? तो आज की तारीख में कोई गोल्ड कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स शेयर है और काफी कंपनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, भाई का सवाल मैं दो तरीके से लेता हूँ। एक है कि कोई गोल्ड की कंपनी है, गोल्ड की दुकान है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या उनके शेयर्स हम खरीद सकते हैं? शेयर होल्डर कौन होता है? एम्प्लॉय होता है कि ओनर होता है? ओनर में छोटा ओनर है, छोटा सा शेयर है उसका, लेकिन ओनर है। अभी वो कंपनी अगर सही काम कर रही है तो सही काम में वो पार्टनर हो गया, और अगर कंपनी कोई चीज गलत भी कर रही है तो गलत में भी पार्टनर हो गया। और सोने के लेन देन में इतने सारे रूल्स है ना कि ये रूल्स फॉलो करने वाला जो सही वाली कंपनी हो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गलत वाली कंपनी हो जिसके अंदर रूल्स तोड़े जा रहे हैं। और इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कहा? अव्वाह अव्वाह, मतलब बिल्कुल अलाम की बात कही, अलामीन के आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ, आई नो रिबा, यही सूद है। तो ये सूद होगा जो वो ज्वेलर कर रहा है काम और सूद मिल रहा है उसे। लोगों को बोलने दो, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग ये सब तो कर रहे हैं, ये तो दुनिया में चलता ही है, ये तो करना पड़ता है। नहीं, सूद है ना वो, और वो सूद के लेन देन के ना पार्टनर बन रहे हैं। तो इसलिए आगाह रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अब आपने एक पर्टिकुलर कंपनी की बात की, तो उनके बारे में क्या बात कही जा रही है? उनके बारे में तो बात यह है कि उनका कारोबार ही नहीं था बोलते हैं। अब वो अलग बात है, क्योंकि उसके बैलेंस शीट, टर्नओवर, रिपोर्ट्स वो सब तो है नहीं, किसी को मिले नहीं। क्या हुआ कि लोगों का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, प्रॉफिट भी मिल रहा था, कहाँ लग रहा है, बिजनेस क्या है, उसके डीलिंग वो क्या है, ये भी चेक करना जरूरी है। जो पार्टनर होता है उसको पता होना चाहिए क्या काम हो रहा है। तो वो लोग चेक नहीं करते थे कि क्या रिटर्न फाइल हुए, क्या इसके ऑडिट रिपोर्ट्स है, वो सब कुछ नहीं थे। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, और उसमें हम सबको आगाह रहना चाहिए कि ऐसी जगहों से में लोग जो चले जाते हैं और चेकिंग नहीं होती है, वैसे चेकिंग होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी बात है, ताकि इसमें सेम हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। जी देखिए कैसा है, इंस्टॉलमेंट का मामला ये है कि अगर कोई बेचने वाला खुद ट्रक बेचने वाला आपको कहता है कि मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं तुम्हें, तुम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दो, तो यहाँ पे अक्सर उलमा ने अलाउ किया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि वो जो बेचने वाला है उसके पास उतना क्रेडिट नहीं होता है कि वो बहुत लोगों को क्रेडिट पे बेचे, इतना कैपिटल नहीं होता है। तो फिर बैंक आती है पिक्चर में। बैंक कहती है वो बेचने वाले को, सपोज करो कि ये ट्रक के 20 लाख है डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पे है तो 24 लाख है सपोज करो, तो हम तुम्हें 20 दे देंगे और जो 24 लेना है वो हम इनसे ले लेंगे, 4 लाख जो सूद है। तो क्लियर कट सूदी ट्रांजैक्शन होता है वो। जो यहां पर भी जो फाइनेंस कंपनीज है सबके सब सूदी बेचते हैं। लेकिन सऊदी के अंदर क्या होता है कि जो इस्लामिक बैंक अर्राजी की मैं मिसाल दे रहा हूं, और भी बहुत सारी बैंक है, वो लोग क्या करते हैं कि कार कंपनीज में पार्टनरशिप करते हैं, वहां पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और वो कार कंपनीज वो कैपिटल की बुनियाद पर खुद कार कंपनी क्रेडिट पे देती है, इंस्टॉलमेंट पे देती है। तो ये चीज जायज होती है, ये जायज तरीका है। या तो इस्लामिक बैंक जो है उसको खरीदेगी, पोजेशन लेगी, फिर बैंक इस्लामिक बैंक उसको बेचेगी, यानी खुद वो कार के बिजनेस में आ रही है। तो ये सब टाइप की चीज होती है जो हलाल है, लेकिन जो पैसे पे पैसा है वो हराम है, वो नाजायज है। वो करने वाला कौन है? करने वाली ये बैंक है।
جب اسلامک بینک نہیں ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اندر الرٹنس اویئرنیس بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ نان مسلم کنٹری میں سود کا کاروبار کر سکتے ہیں, جب ان کو خود ہی انٹرسٹ نہیں ہے تو ملے گی بھی نہیں نا. اگر انٹرسٹ ہو تو جا کے چیز ملے گی. ایک پرابلم یہ ہے. تو چھوٹی موٹی کریڈٹ سوسائٹی تو بنائی جا سکتی ہے اور بنی ہے, بعض شہروں میں ہے, جیسے بعض شہروں میں چھوٹی موٹی کریڈٹ سوسائٹی اویلیبل ہے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ اسلامک بینک فل فلیجڈ اویلیبل نہیں ہے, اب اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم حلال آپشنز میں دیکھیں. سود کا ایکسکیوز نہیں ہے صحیح, کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجبوری ہے, سود کی مجبوری ہے, تو آپ نے 73 والی حدیث سنے سب سے کم درجہ کیا ہے, تو کون سی مجبوری میں کوئی شخص ایسی بات سوچ سکتا ہے. تو یہاں سوال یہ ہے کہ مجبوری کا ورڈ لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں اس ورڈ کو. جی ایک کام کرتے ہیں, وہ 4-5 سوال پینڈنگ پڑے, فاسٹ پوچھ لو, تو وہ سوال کو 4-5 جو آئے ہیں آن لائن ان کا جواب دے دیتے ہیں, پھر آپ کا سوال لیتے ہیں. جی آپ ہاتھوں ہاتھ بیچ رہے ہیں نا, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ انڈیا میں ریال لے کر آئے اور آپ نے بیچا, آف کورس گورنمنٹ رولس وغیرہ بھی دیکھ لیجیے, اور آپ بیچ رہے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سروس چارجز نا جو ایشو کرنے کے کرنسی, ہاں ٹھیک ہے. ہینڈ ٹو ہینڈ میں 100 لو یا جو بھی ہو رضامندی سے آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. حدیث کیا ہے, بی او کیفا شیتم, تجارت کرو جیسے تم چاہتے ہو. مطلب پلس مائنس 100 لینا ہے میرا چارج, نہیں میں 1000 لوں گا, نہیں میں نہیں دوں گا, سب باتیں کر سکتے ہو. کیفا شیتم جیسے تم لوگ چاہتے ہو کرو, لیکن وہ انکانا یدن بیدن, ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. حدیث یہ ہے. ہاں بولیے. ہاتھوں ہاتھ ہوا کیا شام میں پیسہ بھریں گے تو؟ بھائی کا سوال ہے کہ کریڈٹ کارڈ اگر کوئی خریدے سونا اور شام میں پیسہ بھر دے, تو شام میں بھی پیسہ بھرے تو کیا وہ ہاتھوں ہاتھ ہوا؟ نہیں ہوا. تو ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا تو وہ حدیث کے خلاف عمل ہے. اچھا اگر سونے کی بات نہیں کر رہے ہیں, دوسری چیز کی بات کر رہے ہیں, تو کریڈٹ کارڈ جب لیا انہوں نے تب سائن کر کے کیا دیا کہ 40 دن میں پیسے نہیں دوں گا تو کیا ہوگا, تو سود دوں گا. یہ ماننا ہی غلط تھا, یہ ماننا ہی غلط تھا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے اندر کریڈٹ کارڈ میں پھنسایا جاتا ہے لوگوں کو. آدمی کب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے, ہم لوگ, میں خود بھی کپڑوں کا بزنس ہے, کاروبار میرا بھی, تو میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ کسٹمر کیش لے کے آتے ہیں, کیش ختم ہو گیا شاپنگ ختم ہو جاتی, اور جو لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے تو کیش ختم ہو گیا تو بھی بولے کارڈ ہے دے دیں گے کیش, ہاں وہ شاپنگ چلتی رہتی ہے ان کی. پھر کل کے پیسے آج خرچہ کر دیتے ہیں لوگ, اور پھر کیا ہوتا ہے کل پیسے نہیں ہوتے ہیں اور پھر وہ سود کے چکر میں جا کر پھنس جاتے ہیں. یہی کہانی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں خوش رہنے کا, جتنا ہے الحمدللہ, تھوڑا ہے اتنا خوش. یہ اچھا رہتا ہے کہ آدمی جتنا کیش ہے, کیش کے چکر, کیش ختم ہو گیا, ڈیبٹ کارڈ بینک میں بیلنس ختم ہو گیا, ابھی کچھ نہیں ہے, بس فنش, ختم, شاپنگ فنش. ہم لوگوں کو پہلے ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم ایسے جگہ پر لیں جہاں پہ یہ انٹرسٹ نہ آئے, اور کریڈٹ سوسائٹیز جو بعض شہروں میں ہے ویسے کھلنا چاہیے جس کے ذریعے انٹرسٹ فری سسٹم میں ہم حصہ بنیں. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کرنا چاہیے جس میں انٹرسٹ آئے ہی نہ. ہاں جیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ نہیں آتا ہے تو ایسے ٹرائی کرنا چاہیے, وہاں پہ پیسہ رکھیں جہاں کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہاں پر. پھر بھی اگر آ گیا تو کیا کریں, تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ لینا ہی نہیں چاہیے, وہ آپ کا پیسہ ہی نہیں ہے, وہ لینا ہی نہیں چاہیے, ایسا کہتے ہیں بعض علماء. اور صرف ایک چیز ہے کہ کوئی اگر مر رہا ہے تو ایسے مرتے ہوئے شخص کو جان بچانے کے لیے آپ اس کو پیسہ وہاں سے نکال کر کے دے سکتے ہیں. مرتے ہوئے شخص, جیسے کسی عورت کو چھونا حلال ہے کہ نہیں ہے, حرام ہے, لیکن اگر کہیں آگ لگ گئی ہے, جان بچانے کے لیے کسی کو اٹھا کر کے یا بھاگنا ہے, تو ابھی وہاں پہ نہیں بول سکتے چھونا حلال نہیں ہے,
वहां पे उठा करके जान बचाने के लिए कर सकते हैं। तो जान बचाने के लिए फिर वो उसमें कानून में आसानी है। तो इसीलिए वो चीज बाज़ उलमा कहते हैं कि सिर्फ जान बचाने के लिए ऐसा पैसा, सूद का पैसा लेकर के ऐसे को दिया जा सकता है जिसकी जान बचाने के लिए जरूरी है। तो ऐसे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा, आखिर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स का पैसा देने के लिए है नहीं कुछ, तो ऐसे केसेस में सूद का पैसा दिया जा सकता है। ऐसा कहते हैं, मुद्दतौर जिसे कहते हैं, बहुत ही मजबूर, उसको दिया जा सकता है। अल्लाह आलम। क्या होगा कि उसमें हमारा घर पैसा भी पहले आ गई, उसका कुछ पड़ा होगा तो गड़बड़ हो गया। आज का प्रॉब्लम है हम बेकार हो गए, तो घर वालों को पता है कितना सूद है, कितना आता है, मेरे ख्याल को निकाल के डिस्पोज करना चाहिए। आपकी बात बहुत अच्छी लॉजिक है जी, जो आप लॉजिक बता रहे हो अच्छी लॉजिक लगी मुझे। हाँ, हैवी डिपॉजिट में देखो कि अब वो 10 लाख उसको देंगे तो वो भाड़ा क्या करेगा? 10 लाख डिपॉजिट देंगे तो भाड़े का क्या करेगा? वो नहीं लेगा। तो वो जो कम किया उसने भाड़ा, क्यों कम किया? पहचान की वजह से, पैसे की वजह से। पैसे के बदले में वो सूद नहीं दे रहा है, पैसा लेके सूद नहीं दे रहा है, लेकिन जो भाड़ा उसको मिल रहा था वो भाड़ा माइनस कर रहा है। तो जितना भाड़ा माइनस किया, सपोज करो 20,000 भाड़ा था, उसने कहा मैं 10,000 कर दूंगा या 5,000 कर दूंगा या 0 करके सिर्फ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जितना कम किया पैसे की वजह से किया ना, वो सूद है। हाँ, तो यहां पे क्या है, जैसे मैं बताया ना कि सूद नाम बदल करके आता है, तो ये एक मिसाल है जिसमें सूद नाम बदल करके आता है। भाई का सवाल है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम जो चल रहा है, इकोसिस्टम, उसके अंदर अगर हम वो उससे बाहर रहेंगे, सूदी काम में नहीं रहेंगे, तो क्या हम पीछे नहीं हो जाएंगे? यहाँ क्या समझना है ना, जैसे जूस खुद आपस में जूस सूद को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई सूद का लेन देन करे। कम्युनिटीज में देखेंगे, बात कम्युनिटीज है, बोरीज वगैरह, वो लोगों ने क्या किया, अपना खुद का अंदर का इकोसिस्टम इतना अच्छा बनाया कि कोई शख्स को सूदी लोन में नहीं जाना पड़े। इंटरेस्ट फ्री सिस्टम जिसके जरिए बिजनेस ग्रो हो, इंटरनल बिजनेस ग्रो हो। तो अगर कोई शख्स सूदी सिस्टम में जाएगा ना, वो खून चूसने वाला सिस्टम है। वो ऐसी चीज है जैसे आप बेवकूफी की इंतहा देखोगे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि लोग अक्सर कहते हुए मिलते हैं कि ये मैंने ईएमआई पे लिया है। ईएमआई, लोग क्या बोलते हैं, ईएमआई इसका इतना है, ये घर लिया मैंने, ईएमआई इतना देना है, ईएमआई इतना देना है। टोटल करके तो देखो कितने महीने तक देना है, कितने साल तक देना है। उसके बाद क्या होगा, बीच में अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो क्या रूल्स है उसके, क्या आपको पता है उसके अंदर रूल्स कैसे होते हैं? इतने खून चूसने वाले रूल्स होते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपका बीच में हो गया ना, तो आपका कैपिटल पेड नहीं, आपने सूद पे किया पहले। बैंक बोलती है, बोले आपने जो अमाउंट पे करना था वो नहीं पे किया, आपने सूद पहले पे कर रहे हैं। तो वो लोग पहले सूद निचोड़ रहे होते हैं, बाद में कैपिटल की तरफ डाल रहे होते हैं। शुरू में कम कैपिटल की तरफ डालते हैं, बाद में कैपिटल की तरफ। यानी कि मैंने खुद बैठ के कैलकुलेट किया कि 12%, सॉरी 8% पर 8%, अगर 8% सूद पर कोई अगर घर खरीदता है तो 12 लाख का घर है ना, तो उसको 24 लाख देना पड़ेगा। 12 लाख सूद होता है। लेकिन लोग क्या देखते हैं, ये नहीं देखते कि उनको डबल देना है, क्या देखते हैं कि ईएमआई इतना है। तो इसके अंदर अगर हम लोग अवेयर लोग हैं और हम लोग इस खून चूसने वाले सिस्टम के झूठे प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं, है ना। आप बैंक के प्रोपेगेंडा देखोगे ना कि आपके अंदर हिम्मत है ये करने की, हिम्मत नहीं, बेवकूफी है, हमें इतना सूद दोगे, हम तुम्हारा से सूद निकालने के लिए तुम्हें घोड़े पे चढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अपने ख्वाब को पूरा करने का हिम्मत है। मतलब पैसे चाहिए जेब में, सूद पे पैसे उठा रहे हो और पूरा रिस्क तुम्हारा, तुम बिजनेस भी करोगे, आइडिया भी तुम्हारी, मेहनत भी तुम्हारी, वो लोगों का कुछ भी रिस्क नहीं, तुम प्रॉफिट करो लॉस करो, उनको तो सूद देना ही पड़ेगा। बोले तुम्हारे अंदर क्या हिम्मत है। हाँ, घोड़े पे चढ़ाते हैं। आपके ख्वाबों का घर, हाँ ख्वाबों का घर, बीवी खुश, बच्चे खुश, सब जगह खुशी खुशी का माहौल होगा। ये नहीं बता रहे हैं कि सूद का माहौल होगा, लानत होगी।
تو یہ सब बेवकूफ बनाने के काम है, और हम अगर अलर्ट लोग हैं तो हम लोग वो बेवकूफी के सिस्टम से बच रहे हैं। लेकिन ये है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए हमारे पास अपना इकोसिस्टम होना चाहिए, जो नहीं है, जो मुस्लिम कम्युनिटी आमतौर पर बात करेंगे तो हमारे पास नहीं है, तो होना चाहिए। अब क्या तरीका है, सोल्यूशन है? चलो आज तो बात तो कर रहे हैं, सिर्फ बात तो करने से कोई ना रोके, हो सकता है बातें सुनकर कोई होगा जो इसको ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन हकीकत से हमारे पास ऐसे हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए हमारे अंदर। अगर बैंक नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए, इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए, जिससे हम अपने बिजनेसेस को टेक ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट दे सकें। हाँ, और हमारे पास सिस्टम्स होना चाहिए। देखिए कैसा है ना, आपके पास पैसा होगा, अब आपका कई बार लोगों का एक्सपीरियंस ये होता है ना कि मैंने पैसे उसके साथ लगाया, उसने डुबा दिया, अब मैं किसी के साथ जिंदगी में नहीं लगाऊंगा। ऐसी कई लोगों की कहानी होती है कि कोई है जिसकी कहानी है कि मैंने किसी के साथ लगाया था कि उसने डुबा दिया, और कर्जे में मैंने उसको कर्जा दिया था, उसको कर्जा दिया था, उसने कर्जा नहीं दिया। अभी कोई भी कर्जा मांगता है तो मैं कर्जा वर्जा तो नहीं देता हूँ। एक कर्जा मालूम है, कर्ज देना एक ऐसी चीज है, सवाब का काम है। कर्ज देकर उतना कि जितना कर्ज दिए उतना कर्ज वापस आ गया तो भी क्या होता है, आपको सवाब मिलेगा। हाँ, कितना सवाब मिलेगा? यानी कि इसके अंदर जितना कर्ज आपने दिए उसका निश्चित आधा आपको सदके का सवाब मिलेगा। यानी आपने अगर किसी को 2 लाख रुपए दिए, जरूरत थी उसको, उसने 2 लाख रुपए आपको वापस दे दिए, तो आपको सवाब कितना मिला? सदके का 1 लाख का सदके का सवाब मिला। पैसे भी वापस आ गए, सदके का सवाब भी मिल गया। लेकिन लोगों की कहानी है ना कि उन्होंने किसी को कर्ज दिया था, फिर किसी ने कर्ज लौटाया नहीं, तो उस चक्कर में अभी किसी और को जिंदगी में कर्ज नहीं देंगे, और होती ही कई कहानियां। तो सिस्टम होगा तो क्या होगा मालूम है? ऐसे नहीं होता सिस्टम। सिस्टम के अंदर सिस्टम से काम होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिस्टम ये होना चाहिए, जैसे आपको पता है वो हदीस 3 लोग हैं जिनकी बद्दुआ कबूल नहीं होगी। 3 लोग हैं जिनकी बद्दुआ कबूल नहीं होगी। उसमें से कौन? जिसने किसी को कर्ज दिया था लेकिन लिखा नहीं था, कर्ज दिए लेकिन लिखा नहीं। लिखने की आयत इतनी लंबी आयत नाज़िल हुई, कुरान की सबसे लंबी आयत क्या है? कर्ज लिखने के बारे में, और आप नहीं लिखोगे। अब आपने कर्ज दिए, लिखे नहीं, 2 गवाह नहीं बनाए, और फिर सामने वाला कर्ज नहीं दे रहा है, तो फिर आपको गुस्सा आ गया, आपने हाथ उठा लिया बद्दुआ करने के लिए, तो आपकी बद्दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि तुमने लिखे नहीं थे। एंट्री नहीं, क्या होता है, लिखने से प्रेशर क्रिएट होता है। सिस्टम है ना, लिखना, गारंटी लेना, कोई गारंटी है क्या, कभी कभार सिक्योरिटी लेना, गोल्ड सिक्योरिटी या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह। भाई एक अगर हमारे पास ऐसी बॉडी, ख्वाब देखने दो भाई, ख्वाब देखने से मत रोको, नहीं है मालूम है, लेकिन ख्वाब तो देखने दो। तो अगर हमारे पास ऐसी एक बॉडी होती जिसके अंदर ऐसा सिस्टम होता कि ठोक बजा के सब सिस्टम पूरा करे, क्या होता है ना, तकल्लुफ होता है। इंफरादी तौर पे कोई शख्स होता है ना कि भाई हमारे पहचान के फलां ने पैसे मांग लिया तो मैं उनको दे देता हूं, अभी उनसे कहाँ लिखाऊं, कहाँ ये करूं, तकल्लुफ आ जाता है इसमें। लेकिन अगर एक बॉडी हो ना, बॉडी, तो वो सिस्टम से चलेगी। हाँ, एक इदारा हो, कुछ जिम्मेदारान हो, वो सिस्टम से चले, और बड़े पैमाने पे होगी, बड़े पैमाने पर। क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भाई बिजनेस बढ़ाने का एक सिस्टम हो, मजबूरी में मदद करने का सिस्टम हो, तिजारत बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे होने की जरूरत है जी, जरूरत है। और इससे क्या होगा, लोग सूद से बच पाएंगे। चलो, बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे तो इस मौजू पर, मेरे ख्याल से हम लोगों ने अच्छा खासा कवर कर लिया। बारकल्लाहु फीक। इसी के साथ हम आज की इज्जत को खत्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।